Okay, let's student, we start with our this monohybrid cross that we have done yesterday. Before going for the test cross, let's we revise this rapidly. Why test cross is required? Simple monohybrid cross. The meaning of the monohybrid cross is what? A single character. But for that single character, there are two traits. What are the two traits? As for example, character is the height of the stem. Traits are two, tall and dwarf. For the tall, the gene is denoted as a capital T, and for that dwarf, it is a small t. So in F1 generation, what we get, that is the tall plant, but those are the heterozygous, capital T and small t. What does it indicate? It confirms that the only one character, but for that one character there are two genes, and both the genes are the dissimilar. These dissimilar but one character, hence it is called as a monohybrid cross. Here, let's we start with this. Height of stem, traits tall and dwarf. P generation, phenotype tall cross with the dwarf. F1 generation tall. F1 is, all the F1s are equivalent to the P generation tall plant. Nothing difference was there. F1 when cell pollinated, by the cell pollination, F1 cross with the F1 means tall and dwarf both are present in the F2 generation. It is somewhere 3:1, 3/4 are tall, 1/4 are dwarf. 25% are tall, 25% are dwarf. When we go for the genotype, means by representing the genes, in this genotype, P generation, tall plant, capital T, dwarf plant, small t. When we go for the gametes, from the tall plant, gametes, capital T, small t from the dwarf plant. What happened? By the Punnett torus, this small t are represented here. Capital T, pollen grains are represented here. So in F1 generation, all are what? One dominant, one recessive. Means capital T, small t, which is known as a heterozygous tall. When this F1 is self-pollinated, during this self-pollination, F1 is crossed with the F1. So what happened? Heterozygous tall is crossed. So gametes are formed here. Heterozygous tall means half of 50% are dominant, means capital T. Half means 50% are recessive, means small t. Here also same. Half are containing the genes dominant. Half contain the genes which are responsible for the recessive. So here these are represented here capital T, small t. These are represented here capital T, small t. The method is what? First, second. Second, first, second. So look here, very easily we can represent here first, second. Second, first, second. So here look, in F2 generation, capital T means tall plant. Capital T, small t means heterozygous, they are also tall. Small t means dwarf, means 2 times capital T, small t tall, 1 time capital T tall, means 3 times total tall, 1 time dwarf. Here capital T we can say that they are the homozygous dominant. Capital T, small t, they are known as the heterozygous. Small t dwarf are the homozygous recessive. Now look here, these are the homozygous recessive. Now look here, what happened? The question arises here, how will be the F3 and F4 generation? When we go for the F3 and the F4 generation, what happened here?
First we confirm for that homozygous recessive. In this homozygous recessive, what is a homozygous recessive? Small t, small t. Small t, small t, homozygous recessive. When self-pollinated, small t, small t. So what will be happen? Let's we go for the gametes. Here you can say that these are the gametes. Half will contain these gene, means small t, half will be of the small t. It doesn't matter which one will come. Here also small t, small t. So look here. Small t, small t. Small t, small t. First, small t, small t. First, second, small t, small t. Second, first, small t, small t. Second, small t, small t. What does this indicate? All will be dwarf. Means if you have the dwarf plant in successive generation, you will have the dwarf. The meaning of dwarf is not only for the dwarf, but if you have any recessive character, the successive generation will always produce recessive only. The question arises regarding the dominant. Let's we go for the dominant. First dominant, which one? Homozygous dominant. Okay. Capital T, capital T. When cross with this one. So here also gametes capital T and capital T. Here also from capital T, capital T. When this is the crossed, so look what happened here. This capital T, this capital T, this capital T, this capital T. Means what? First, second, second, first, second, second. All will have the homozygous dominant. Okay. Let's we go for the heterozygous. चलो heterozygous dominant है तो क्या होगा उसका? So look here, heterozygous dominant ही होगा तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी स्मॉल टी. यहाँ के भी जो गैमेट बनेंगे हाफ ऑफ द कैपिटल मीन डोमिनेंट, हाफ ऑफ द विल बी रिसेसिव. तो बोलो क्या बनेगा इसमें से? बहुत इजी है, ये किया भी है हमने सब, अभी बोर्ड पे भी प्रेजेंट है. मेरे को लिखना भी नहीं चाहिए, आप लोगों को दिख जाना चाहिए. ये F1 का सेट वही के वही तो है. सो हियर व्हाट विल बी देयर? वंस अगेन 3:1. ये हुआ. ये इसके लिए मैंने पूरा रिपीट किया. द सेम क्वेश्चन, सेम थिंग वाज आस्क्ड ट्वाइस इन नीट एग्जाम. F3 जनरेशन, F4 में क्या आएगा? स्टूडेंट आगे बोले सर ऐसा तो कराया ही नहीं था, वो तो कराओ यूज नो टू. अरे मैंने क्या तुम्हारे अपने आप से भी एक चार्ट किया होता तो समझ में आ जाता. चार्ट नहीं किया होता, तुमने ये बराबर अच्छे से समझा होता तो भी समझ में आ जाता कि ये F1 का सेल्फ पॉलिनेशन है, वही यहाँ से हेट्रोजाइगस का है. चलो ये हो गया. अब हम जाते हैं टेस्ट क्रॉस में. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेस्ट क्रॉस? बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका. क्या इंपॉर्टेंस है अभी हम समझते हैं. देखो ये जो है यहाँ पे हमको कंफर्म करता है कि स्मॉल टी मीन्स ड्वार्फ. मीन्स व्हाट? कि ड्वार्फ रिसेसिव कैरेक्टर है. ये ड्वार्फ यहाँ पे है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ऑलवेज रिसेसिव. रिसेसिव कैरेक्टर होगा तो उसका जेनोटाइप होएगा होमोजाइगोस रिसेसिव.
अदरवाइज रिसेसिव कैरेक्टर बन सकता नहीं है। लेट्स वी गो फॉर द टॉल। टॉल मीन्स क्या? डोमिनेंट। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल लेंगे तो वही डोमिनेंट ऐसा ही बोलेंगे। यहाँ तो हमारे सामने है, वो समझने के लिए मैं टॉल का ही खाली एग्जाम्पल लेता हूँ। तो टॉल डोमिनेंट दो टाइप के रहते हैं, जीनोटाइप। कौन से? होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस। तो बोलो क्या हुआ? There is no confusion regarding the recessive character। बोलो आज के बाद में याद रख लेना, पूरी लाइफ में MBBS MD के कुछ भी खुदा उसके न बाद में भी याद रखना कि रिसेसिव कैरेक्टर आएगा तो वो क्या होगा? होमोजाइगस रिसेसिव। जब भी प्रॉब्लम आए मेरे को याद कर लेने का। इस बागवान सर ने बोला था कि रिसेसिव कैरेक्टर ऑलवेज क्या रहेगा? होमोजाइगस रिसेसिव। बट डोमिनेंट कैरेक्टर दो टाइप से डेवलप होंगे, वो ट्रेट दो टाइप से। होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। अब कंफ्यूजन क्या है कि हमको टॉल विच डोमिनेंट दिख रहा है, वो दिख रहा है विच इज विजिबल, दैट इज नोन एज द फेनोटाइप। आप गार्डन में गए, आपने टॉल प्लांट देखा, ये भी टॉल प्लांट है, इधर भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है। ये तीनों टॉल प्लांट में से कौन सा होमोजाइगस डोमिनेंट है, कौन सा हेट्रोजाइगस है? पता चल सकता नहीं। क्यों? हम एवरी सेल के न्यूक्लियस में जाके देखते हैं ओपन करके? नहीं देख सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो प्लांट डोमिनेंट हैगा, ये डोमिनेंट प्लांट हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस डोमिनेंट है, वो कंफर्म करने के लिए ये प्लांट का टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर बता रहा है, डोमिनेंट ट्रेट बता रहा है, वो दो टाइप से हो सकता है। ये कौन से दो टाइप से हो सकता है? होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस। तो ये डोमिनेंट प्लांट का हम क्या करेंगे? टेस्ट क्लोज करेंगे। अभी हमने देखा कैसे, तो इसको सेल्फ पॉलिनेटेड करेंगे तो क्या होएगा? होमोजाइगस डोमिनेंट मींस होमो सब डोमिनेंट कैरेक्टर ही मिलेंगे। यहाँ 3:1 मिलेगा। बट वो थोड़ा कितनी बार कंफ्यूजन कर देता है। क्यों कंफ्यूजन आता है? वो अभी तुम्हारा मैटर नहीं है। मेंडल ने जो बताया वो टेस्ट करने का। देखते हैं क्या हैगा। बोलो हमारे पास कौन सा प्लांट हैगा? डोमिनेंट। बुक में वायोलेट और व्हाइट का भी एग्जांपल दिया है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले हमने जो स्टडी करा है वही देखते हैं। बोलो टॉल प्लांट है डोमिनेंट, दो तरह से हो सकता है। होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो इसको क्रॉस किसके साथ कराने का? टेस्ट क्रॉस किसके साथ कराने का? रिसेसिव के साथ में कराने का। अब कितने स्टूडेंट बोलते हैं सर रिसेसिव के साथ में क्यों कराने का? अरे भाई रिसेसिव के साथ में इसके लिए कराने का कि रिसेसिव मींस कंफर्म कि वो क्या होगा? होमोजाइगस रिसेसिव ही होगा। As for example, if you are given that x plus y is equal to 3, find out the value of y. तो आप क्या बोलोगे? सर हमको x की वैल्यू दो। एक की वैल्यू खबर होगी तो ऑटोमेटिक दूसरे की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर जो आपको x की वैल्यू पता है कि it is a 2, so you can say that 2 plus y is equal to 3 means y is equal to 3 minus 2 means y is equal to 1. ये y is equal to 1 आंसर क्यों मिला? Because we not get the value of x. तो इसी चीज के आइडिया पे से मेंडल ने खुद का स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स का नॉलेज लगाया और यहाँ पे किया कि जब हम कोई डोमिनेंट को फाइंड करना चाहते हैं कि वो कौन से टाइप का है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है कि वो हेट्रोजाइगस है, तो उसके लिए हमको ऐसे के साथ में क्रॉस कराना चाहिए जो हमको पता हो। तो हम 100% कंफर्म किसका बोल सकते हैं? रिसेसिव। रिसेसिव के साथ में क्रॉस कराने का। बोलो समझ में आता है? किसके साथ क्रॉस कराने का? रिसेसिव। द रीजन इज दिस
अब देखो तो यहाँ पे भी बोलो, जब ये हम एग्जाम्पल लेते हैं, बोलो दो टाइप के गैमीट बनेंगे, तो बोलो वो गैमीट में यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँगा कैपिटल टी कैपिटल टी। पहले हम होमोजाइगस का एग्जांपल लेते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, बोलो उसका क्रॉस के साथ में करने का है, रिसेसिव के साथ में, तो बोलो उसमें से कौन आएगा, स्मॉल टी आया इतना। और सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक करी यहाँ पे, हाँ स्मॉल टी, तो बोलो क्या बनेगा यहाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी। मेनी टाइम स्टूडेंट आस्क मी कि सर फर्स्ट स्मॉल टी लिखो, अरे फर्स्ट स्मॉल लिखूं कि कैपिटल लिखूं, कोई उससे डिफरेंट नहीं आने का है। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कैपिटल को पहले लिख देंगे, डोमिनेंट को। बोलो यहाँ पे भी ये बोलो ये अपने दोनों का बनेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों का बनेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। मीन्स बोलो ये दोनों का क्रॉस करने से जितने भी प्लांट उसके प्रोजेनी में आएंगे सब कौन सा कैरेक्टर बताएंगे, डोमिनेंट ही बताएंगे। तो इफ यू हैव एनी डोमिनेंट इंडिविजुअल, if that individual is when crossed with the recessive, if progeny is represented by dominant character, then it is confirmed that the given plant, given individual was a homozygous dominant. ये तो चार्ट है तो हमको पता चल गया। एक बार एक स्टूडेंट आएंगे, सर ये तो हमको पता ही है ना, अरे नहीं पता है, मैंने आपको ये प्लांट दिया, लो कौन सा प्लांट दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, दोनों कौन से हैं, टॉल है, डोमिनेंट है। समझ में आ रहा है ना, हम फेनोटाइप देख रहे हैं, बाहर का कैरेक्टर देख रहे हैं, ये तो ये चार्ट है उसके लिए। एक को ये टाइप का होगा, एक को ये टाइप का होगा। तो बोलो जिस दोनों उसका क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे, किसके साथ, रिसेसिव के साथ में। तो जो एक रिसेसिव के साथ में क्रॉस करेगा और उसकी प्रोजेनी में सभी डोमिनेंट आएंगे, व्हाट डज इट मींस कि उसको दिया हुआ इंडिविजुअल प्लांट कैसा आएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। चलो यहाँ पे हम देखते हैं, तो बोलो यहाँ से अगर जो उसको हेट्रोजाइगस दिया होगा तो क्या होगा, बोलो हेट्रोजाइगस उसको मिला होगा तो क्या होगा। तो बोलो इसके में क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलो यहां से बोलो इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, स्मॉल टी। तो बोलो क्या बनेगा यहाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट रो में देखो, फर्स्ट रो में दो टू ये अपने मिलते हैं, बोलो ये कौन सा कैरेक्टर रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मींस डोमिनेंट, और ये सेकंड रो में स्मॉल टी मींस रिसेसिव। Two plants are dominant, two plants are recessive, not two but proportionally, means 50% is dominant and 50% will be recessive progeny. तो अगर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको किसके साथ में किया, डोमिनेंट ट्रेस कैरेक्टर वाले को रिसेसिव ट्रेस कैरेक्टर के साथ में किया, तो प्रोजेनी में 50% डोमिनेंट आए और 50% रिसेसिव आए। व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इंडिकेट दैट कि गिवन डोमिनेंट वाज नॉट द होमोजाइगस बट इट इज अ हेटेरोजाइगस। ने अगर जो F उसकी प्रोजेनी में सब डोमिनेंट आए तो उसका ने मतलब क्या निकलता है कि गिवन डोमिनेंट वाज अ होमोजाइगस डोमिनेंट। Okay, so this is called as a test cross. In our book, this test cross is given for the flower color. चलो फ्लावर कलर कौन सा था, बोलो पहले यहाँ हम लिखेंगे कैरेक्टर, बोलो कौन सा कैरेक्टर है, फ्लावर कलर। बोलो ये फ्लावर कलर जो है वो फ्लावर कलर, उसके बोलो दो ट्रेट्स है,
बोलो एक डोमिनेंट है, डोमिनेंट इज व्हाट, वायोलेट। एक रेसेसिव है, व्हाट इज रेसेसिव, विच वन, व्हाइट। चलो डोमिनेंट है तो बोलो उसको ने क्या लिखेंगे, कैपिटल वी। इसको ने बोले व्हाइट को क्या लिखेंगे, स्मॉल वी। बट आई थिंक हमारी बुक में एक मिस्टेक हुई है, वो मैंने पहले देखी। बोलो क्या मिस्टेक हुई है, आई थिंक इट वाज प्रिंटिंग मिस्टेक, ड्यू टू दैट व्हाट हैपन, वायोलेट के लिए वी नहीं बट क्या रिप्रेजेंट कर दिया है कि डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर दिया है। प्रिंटिंग मिस्टेक है तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक ही हम चलाएंगे। तो बोलो यहाँ डब्ल्यू कैपिटल लिख देंगे, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू लिख देंगे। जो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको हम एक्सेप्ट करने की है। चलो इसमें बहुत आर्गुमेंट कुछ नहीं चाहिए। चलो ये ट्रेस्ट है तो बोलो कोई प्लांट के अंदर वायोलेट है, वायोलेट फ्लावर है, तो बोलो वो वायोलेट फ्लावर दो टाइप के फेनोटाइप वायोलेट है, तो जीनोटाइप दो टाइप का हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस। बट बोलो व्हाइट है तो हमको ये समझ में आना चाहिए व्हाइट कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा ट्रेट है, बोलो कौन सा ट्रेट है, रिसेसिव। तो बोलो रिसेसिव ऑलवेज क्या रहेगा, होमोजाइगस रिसेसिव। तो रिसेसिव ट्रेट के लिए हमको टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। हमको टेस्ट क्रॉस किसके लिए करना है, खाली डोमिनेंट के लिए, क्योंकि डोमिनेंट दो टाइप से बनते हैं। तो बोलो ये जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो हमको फाइंड करना आएगा। तो बोलो कैसे करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे। बोलो टेस्ट क्रॉस किसके साथ करने का, रिसेसिव के साथ में। देखते हैं कैसे होता है। बोलो हमारे को दिया बुक में यहाँ पे उसका ऐसा फ्लावर भी ड्रॉ करके दिया है। अगर जो तुमको एग्जाम में इंटरेस्ट है, टाइम में, तो ऐसा फ्लावर भी ड्रॉ कर सकते हो। टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। बोलो पहले कौन सी लेंगे, वायोलेट, यानी जो फाइंड करना है। बोलो ये वायोलेट में दो पॉसिबिलिटीज है, बोलो कौन से हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट। बोलो दूसरा कौन सा हो सकता है, हेट्रोजाइगस। बरोबर है। बोलो किसके साथ में क्रॉस करने का, रिसेसिव। क्यों रिसेसिव के साथ में क्रॉस करने का, बिकॉज वी आर कंफर्म दैट रिसेसिव्स आर ऑलवेज होमोजाइगस। तो बोलो यहाँ पे हम अगर जो इसको क्रॉस करने जाएंगे तो बोलो ये व्हाइट फ्लावर के साथ उसको क्रॉस करना आएगा। तो बोलो व्हाइट फ्लावर वाला जो प्लांट है उसके अंदर बोलो क्या क्या बनेगा, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। चलो बोलो यहाँ से अगर जो हम इसका प्यूनेट स्क्वायर बना के बोलो पूरा ड्रॉ करेंगे तो बोलो हमको क्या आंसर मिलता है, देख लेंगे। बोलो ये होमोजाइगस था, ये होमोजाइगस था, तो बोलो इसके यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो बोलो कैपिटल डब्ल्यू गैमीट बने। इसको अपने यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलो कौन से गैमीट बनेंगे, बोलो कौन से, अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। अब तो ये तो एक अपना खेल हैगा, कोई स्टडी नहीं है। स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो बोलो यहाँ पे क्या बनेगा, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव। बोलो सब कैसे मिले हमको, हेट्रोजाइगस मिलने वाले। हमको दिखता नहीं है हेट्रोजाइगस है ये, बट हेट्रोजाइगस है ना, हमको सब कैरेक्टर कौन सा मिलेगा, डोमिनेंट। तो इसपे से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमको जो डोमिनेंट प्लांट दिया था वो डोमिनेंट वायोलेट फ्लावर वाले को जब रिसेसिव व्हाइट के साथ में क्रॉस किया तो ऑल द प्रोजेनिस आर शोइंग द वायोलेट कलर मींस डोमिनेंट, मींस इट इंडिकेट दैट गिवन प्लांट वाज अ होमोजाइगस डोमिनेंट। अब यही चीज यहाँ पे देखते हैं। बोलो हमको ना पता नहीं है, बोलो ये जो है बोलो हेट्रोजाइगस हो सकता हैगा,
बोलो हेट्रोजाइगस है उसको भी रिसेसिव के साथ में क्रॉस करने का हैगा। बोलो रिसेसिव मीन्स व्हाइट कलर फ्लावर के साथ। बोलो व्हाइट कलर फ्लावर यानी वो रिसेसिव है मीन्स होमोजाइगस रिसेसिव ही होगा। तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ पे जो आया बोलो यहाँ पे दो टाइप के आएंगे। बोलो कौन से आएंगे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू राइट ना। तो बोलो यहाँ पे क्या क्या बनेगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो बोलो यहाँ पे यू कैन कंफर्म दैट फर्स्ट रो इज शोइंग द heterozygous, second is a homozygous recessive. What does it mean 50% 50%। तो इस पे से हमको ना पता चलता है कि जो डोमिनेंट अगर जो क्रॉस करा रिसेसिव के साथ में और उसमें 50% हमको आंसर मिलता है यानी प्लांट मिलते हैं प्रोजेनी में, तो वो गिवन डोमिनेंट वाज अ हेट्रोजाइगस। अगर जो उसको यानी क्रॉस करा रिसेसिव के साथ में और सब प्रोजेनी डोमिनेंट मिलती है तो उसका यानी मतलब क्या हुआ कि गिवन प्लांट वाज अ होमोजाइगस। इतना एग्जैक्ट ब्रेन में फिक्स रहना चाहिए। अब मेनी टाइम स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यही जीनोटाइप हम वायोलेट और व्हाइट फ्लावर के लिए हम फाइंड करने का हो तो आएगा, ऐसा आएगा। क्या करना है तुमको, टॉल के बदले यहाँ पे क्या लिखोगे फ्लावर कलर वायोलेट, यहाँ ड्वार्फ के बदले क्या लिखोगे व्हाइट, और यहाँ पे क्या लिखोगे टी के बदले कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू वायोलेट है तो उसके गैमीट बनेंगे कैपिटल डब्ल्यू टी के बदले डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू तो उसके गैमीट बनेंगे स्मॉल डब्ल्यू। बस वही मेथड से तुम यहाँ पे जाओगे पूरा के पूरा मिलता जाएगा। वहाँ पे भी आंसर 3:1 ही आने वाला है और जेनोटाइप देखोगे तो 1:2:1 आने वाला है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट टेस्ट क्रॉस। चलो देखो, नाउ ओपन योर पेज नंबर 74। पेज नंबर 74 तो वो जो इक्वेशन हमने करा था उसके नीचे तुम देखो मेंडल सेल्फ पोलिनेटेड द F2 प्लांट्स। बोलो मेंडल ने सेल्फ पोलिनेट करा था किसका F2, यानी जो F2 मिला था ये सब 1:2:1 या तो 3:1 3 टाइप मिले थे। बोलो फेनोटाइप खाली 2 ही टाइप मिले थे टॉल एंड ड्वार्फ, बट जीनोटाइप 3 मिले थे होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। Mendel self-pollinated the F2 plants and found that the dwarf F2 plants continued to generate the dwarf plants in F3 and F4। हाँ वो ड्वार्फ आएगा, ये ड्वार्फ है तो उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन है, कभी डोमिनेंट तो आने का ही नहीं है, तो वो क्या रहेगा रिसेसिव ही रहेगा। Because he concluded the genotype of the dwarf was the homozygous means small t। What do you think he would have got the had he self-pollinated a tall F2 plants? बोलो टॉल F2 मैंने पहले ही समझाया था, टॉल F2 यहाँ से करा होता तो क्या होता F2 F3 में क्या आता, सॉरी F3 F4 में क्या आता टॉल ही आते, क्योंकि टॉल का ही है उसमें डोमिनेंट है। हाँ बट हेट्रोजाइगस वो होगा तो बोलो आधे में कैपिटल टी जाएगा आधे में स्मॉल टी जाएगा, तो बोलो उसके अंदर बोलो क्या आपने मिलेगा, तो उसके अंदर यही F1 का सेल पोलिनेशन है वही मिलेगा, तो एवरी टाइम 3:1 रेशियो मिलेगा। From the preceding paragraphs it is clear that though the genotypic ratio can be calculated using the mathematical probability by simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know that the genotype composition। बोलो डोमिनेंट को पॉसिबल नहीं है, डोमिनेंट फेनोटाइप हमने देखा कि ये फेनोटाइप कैसा आएगा डोमिनेंट है, ये फेनोटाइप डोमिनेंट है बट वो 2 टाइप का हो सकता है। कौन सा वो 2 टाइप का हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है हेट्रोजाइगस, बट वो पता चलता नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। That is for example whether the tall plant F1 or F2
has capital T or capital T small t composition cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of the tall plant of F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. किसके साथ में? Tall plant. Tall plant को किसके साथ में करा? Dwarf. Dwarf यानी कौन? Recessive के साथ में करा. इसको बोलो. कैपिटल टी वाले को ड्वार्फ रिसेसिव के साथ में करेंगे तो सब उसकी प्रोजेनी कौन सी आएगी? डोमिनेंट आएगी. कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस को करेंगे तो 50% डोमिनेंट आएगा और 50% रिसेसिव आएगा. Mendel crossed the tall plant F2 with the dwarf plant. This is called test cross. In a typical test cross, an organism P plants here. कोई के लिए भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे P plants here showing a dominant phenotype, and though genotype is not be determined, is crossed with the recessive parent instead of self crossing. Self crossing नहीं करने का, किसके साथ करने का? हाँ, किसके साथ करने का? रिसेसिव के साथ करने का. वो इतनी बार सेल्फ क्रॉसिंग कहा था कि स्टूडेंट टेस्ट क्रॉस में भी सेल्फ क्रॉस लिख देते हैं. नहीं, टेस्ट क्रॉस के लिए रिसेसिव के साथ में ही करने का. The result of the typical test cross where violet color flower capital W is dominant over the white color flower small w. अब देखो यहाँ पे उन्होंने अभी तक टॉलनेस पे गए थे और टेस्ट क्रॉस के लिए फ्लावर कलर पे आ गए. और ये जो इतना तो चेंज करा उससे हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वो प्रॉब्लम दूसरा क्या कर दिया? वायलेट का कैपिटल V आना चाहिए और व्हाइट के लिए स्मॉल v आना चाहिए. इंस्टेड ऑफ बोलो क्या कर दिया उन्होंने? वायलेट के लिए कैपिटल W ले लिया और व्हाइट के लिए स्मॉल w ले लिया. होता है. Using the Punnett scale, try to find out the nature of offspring of a test cross. What ratio did you get? कौन सा रेशियो मिलेगा? बोलो. होमोजाइगस डोमिनेंट रहेगा तो उसका ऑल 100% विल बी डोमिनेंट कैरेक्टर. हेट्रोजाइगस रहेगा तो बोलो 50% डोमिनेंट एंड 50% रिसेसिव. ये पूरा ये यहाँ पे अपने दिया है पेज नंबर 75 पे. बीच में ये अपने क्वेश्चन मार्क करा है. क्वेश्चन मार्क मीन्स क्या है? यहाँ उनको कलर तो पता है कि वायोलेट है, बट उसका कौन सा टाइप है वो कंफर्म नहीं है. ये होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस, उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करा है. बोलो कोई भी कंडीशन रहेगी हम करते तो किसके साथ में? रिसेसिव के साथ में. तो होमोजाइगस रहेगा तो होल द 100% विल शो द डोमिनेंट. हेट्रोजाइगस रहेगा तो बोलो क्या रहेगा? 50% डोमिनेंट आएगा ना 50% रिसेसिव आएगा. बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन of monohybrid cross, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding to inheritance in the monohybrid crosses. बोलो इसके बेस पे उसने अपने जो भी अंडरस्टैंडिंग था वो अंडरस्टैंडिंग कंसोलिडेट मीन्स दो तरह से एक्सप्लेन किया, कंक्लूड किया. Today these rules are called principles or law of inheritance. The first law of dominance, and the second law of segregation. बोलो फर्स्ट लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंट. एक की कैरेक्टर के दो ट्रेड्स मींस दो जीन से तो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट रहेगा, दूसरा रिसेसिव रहेगा, उसको बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंट. दूसरा कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. एवरी टाइम वी आर रिप्रेजेंटिंग दीज जीन्स इन पेयर है, बट गैमीट बनता है तो वो सेग्रीगेट होके ओनली वन जीन आता है जिसको हम मियोसिस कहते हैं, उसको ना बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. बोलो फर्स्ट 5.2.1 लॉ ऑफ डोमिनेंस. कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स. बोलो जीन्स अभी हम बोलते हैं बट मेंडल ने क्या बोला था उसको? फैक्टर. सेकंड फैक्टर्स अकर इन पेयर्स. हाँ फैक्टर्स प्लांट में, इंडिविजुअल्स में, एनिमल में, कोई में भी कैसे होगा? पेयर में होगा. बट हाँ गैमेट्स में सिंगल, उसको आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates on the other, means recessive pair. अगर जो पेयर बनती है तो पेयर में एक डोमिनेंट रहता है दूसरे के ऊपर. The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross if the F1 and the expression of both in the F2. बोलो F1 के अंदर बोलो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस से एक्सप्लेन होता है कैपिटल T स्मॉल t मींस सब डोमिनेंट है,
और बोलो F2 के अंदर ये एक्सप्रेस होता है कैपिटल T स्मॉल t। चलो सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and both the characters are recovered as such into F2 generation। blend नहीं हो गया, mix नहीं हो गया। blending वो ब्लेंडर मिक्सर में होता है, सब कुछ मिक्स कर देते हैं। तो बोलो ये दो अलग अलग आए तो दोनों मिलके मिक्स नहीं हो गए कि F2 के अंदर बोलो F2 के अंदर दोनों का एवरेज आएगा। ये इंडिपेंडेंट रहा, ये भी इंडिपेंडेंट, दोनों साथ में ही रहे लेकिन दोनों खुद खुद का काम करने के लिए इंडिपेंडेंट रहे। Though the one of these is not seen in the F1 stage, जो कि F1 के अंदर बोलो दोनों आ गए लेकिन एक डोमिनेंट होने से दूसरा रिसेसिव का कैरेक्टर ट्रेट दिखा नहीं, लेकिन F2 में उसने खुद ने खुद का एक्सप्रेशन दिया जहां पे वो पेयर में आ गया। Though the parents contain two alleles during the gamete formation, बोलो gamete formation होता है वहां तक उसके अंदर two alleles रहते हैं, कैपिटल T स्मॉल t जो भी होगा, बट gamete के अंदर सिंगल alleles ही आएगा, meiosis। Though the parents contain the allele during the gamete formation, the factor or alleles of a pair segregate यानी सेपरेट हुआ। बोलो ये पेयर थी, पेयर सेपरेट हो गई। यहाँ पे भी कैपिटल T स्मॉल t पेयर थी, सेपरेट हो गई, आइदर स्मॉल t आया आइदर कैपिटल T आया। The factors another segregate for each other such that gamete receive only one of the two factors। बोलो gamete में कैसा आया, दोनों में से कोई एक ही फैक्टर आया, जीन आया। Of course a homozygous parent produce all the gametes are similar while the heterozygous one produce the two kinds of gametes each having one allele with the equal proportional। बोलो होमोजाइगस रहेगा तो बोलो गेमेट्स कैसे बनेंगे, सेम बनेंगे, बट हेटेरोजाइगस रहेगा तो बोलो 50% डोमिनेंट वाले बनेंगे ना 50% रिसेसिव वाले। तो बोलो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ दिस, इसको ने लॉ तो नहीं बट इसको ने क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस के टेस्ट हुआ, बरोबर इतना। तो इसके बाद में आगे का नेक्स्ट टाइम करेंगे।